Good morning to you all. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Okay. So firstly, I am giving you a question on whiteboard. Please note down the question, solve it, and please write your answer in chat box. Okay. I am writing a question related to K-map. You have to simplify it and give the answer in chat box. Okay. So the question is, you have to simplify the function f is equal to sigma m 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15. Okay. So 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, and 15. Okay. So you have to solve this question, and you have to put your answer in chat box. Okay. I am giving you 4 minutes. 4 minutes is too much, but I am giving it to you. Has anybody solved it? Note the question in your copy.
Okay, I have got only two answers. One from Yogesh and second one is from Anjali. So anybody else who have solved it? Okay. So let us see. तो इन सॉल्यूशन जो राइट सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में सी डी ए बी ओके लेट अस सी how we can solve it. Okay, Vikrant, oh no, he is sending me the attendance. Okay, so solve this question first, Vikrant. Okay, let us see that how we can see that. So as there are 15, that is up to 15 number is there. So how many variables should be there? 4. Yes, there should be 4 variables क्योंकि 15 तक counting है. So 4 variables होगा. So the number of boxes will be 16. Okay. So yes, so we have made a 16 box. Let the variables be A, B, and C, D, because in question variables are not given here. Okay, so we can put any variable. Okay, so the numbering will be from, so if I've already told you that if we are writing A, B, C, D, then the number should be, box number will be 0, 1 हमेशा की तरह होगा, LSB वाले साइड में होगा. इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि मैंने बताया है कि ये नंबरिंग कैसे पुट कर रहे हैं. ओके, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15. Okay, so based upon these numbers, we will put the variables. We will put the min terms in their respective boxes. So 2, 3, 5, 7. Here it is 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13. 9, 11, 12, 13, 14, 15. 14, 15. Okay. So this is the representation of boxes. So let us put here 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Here also 0, 0, 0, 1, 1, 0, and 1, 1. So instead of putting 0, 0, and 0, 1, we can also put A bar, B bar, A bar, B, AB, and A, B bar. In the same way, we can put here C bar, D bar, C bar, D, CD, and CD bar. Okay. Now we have to make the combinations. So Yogesh, what the combination you have taken? Box numbers, the combinations. Yogesh? Third row. Third row. Third row. Okay. Third row means box number 3, 7, 15, 11. 57. Okay. Next. Then 5, 13, 7, 15. 5, 13, 7, and 15. Where it is? 5. Where is 5? 5. Okay. 5 is here. 5, 7, 13, 15. Next. Then 3, 2. 3, 2. 14, 15. 14, 15. 12, 13. 12, 13. And 13, 9. 13, 9. ये सारे combinations आपने लिए हैं ना? Anjali, what are your combinations?
15, 14, and 13, 9, 15, 11, 13, 9, 15, 11 and 3, 2. एंड 3, 2। ये तीन ही कॉम्बिनेशन में सारा वंस इंक्लूड हो गया। Sir, 12, 13, 15, 14. 12, 13, 15, 14, तो ये चार कॉम्बिनेशन, Yes. isn't it? Okay, let us see. तो एक्चुअली हमारा मोटो क्या है? हमारा मोटो है कि मैक्सिमम पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन है वो बनाना है, ठीक है? तो वो कॉम्बिनेशन कौन कौन से हो सकते हैं? लेट अस टेक इट। तो क्वाड्स कितने बन रहे हैं? क्वाड्स हमारे पास कितने बन रहे हैं? तो एक क्वाड ये बन रहा है 12, 13, 15, 14। यस, दिस इज, यहाँ पर योगेश ने वो नहीं शो किया है। ओके अब हमें क्या करना है? 5 और 7, हम एक कॉम्बिनेशन 5 और 7 का बना सकते हैं, ठीक है? लेकिन 5, 5, 7, 13, 15 ये एक बड़ा कॉम्बिनेशन बन रहा है, सो वी विल गो फॉर दैट। ओके, तो हम बड़े कॉम्बिनेशन की तरफ जाएंगे हमेशा। तो चूंकि 5 और 7 को मिलाने से कॉम्बिनेशन बन सकता था, लेकिन 5, 7 के साथ जब हम 13, 15 को मिला रहे हैं तो एक बड़ा कॉम्बिनेशन बन रहा है, सो वी विल गो फॉर द लार्जर कॉम्बिनेशन, नॉट द स्मॉलर वन। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास 9 और 11 है। 9 और 11 को हम अलग से कॉम्बिनेशन ले सकते हैं डुप्लेट का, बट हम डुप्लेट का नहीं लेकर एक क्वाड लेंगे। क्वाड इसलिए लेंगे क्योंकि क्वाड बनाने से एक बड़ा कॉम्बिनेशन बनेगा, और हम जितना बड़ा कॉम्बिनेशन बनाएंगे नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन में उतने ही कम आएंगे, ठीक है ना? जितना बड़ा कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिजल्टेंट में उतने कम निकलेंगे, ठीक? अब हमारे पास ये 2 1 बच रहा है, तो ये बॉक्स नंबर 3 और 2। तो अंजलि ने और क्या बनाया है? 9, 13, 9, 15, 11, 13, 9, 15, 11, ठीक है, ये भी एक सही है। तो इस तरीके से हमारे पास एक क्वाड 5 और 7, 3, 2, 3, 2, ठीक है। 3, 2 एक कॉम्बिनेशन बनेगा। 3, 2 का और किसी के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर और हमारे पास वंस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो 13, 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा, 3, 2 का, ये भी सही है। बट एक जो कॉम्बिनेशन आपने नहीं लिया है वो कौन सा? 15, 13। 15, 13 का है, तो 15, 13 कॉम्बिनेशन अलग से तो लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 15, 13, 7, 15, sir. 15, 13, 7, 15. 15, 13, 7, 15, यस। सो ये होगा। तो इस तरीके से हमारे पास 4 क्वाड मिले हैं, एक ब्लू कलर में है, एक ग्रीन कलर में है, एक पिंक कलर में है ना? सो इस तरह से हमारे पास 4 क्वाड्स हैं, और इन चारों क्वाड्स में सारे के सारे वंस आ रहे हैं एक्सेप्ट 3 और 2 बॉक्स नंबर। तो 3 और 2 बॉक्स नंबर का और किसी के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, तो वो एक सेपरेट कॉम्बिनेशन होगा। ओके, सो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल चॉइस। हम दो का कॉम्बिनेशन 9 और 11 का, 5 और 7 का अलग अलग कॉम्बिनेशन दो का बना सकते थे, और वहां से सॉल्यूशन भी निकलता, बट दैट विल नॉट बी दी स्मॉलेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, ठीक है। हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन की तरफ जाना है, और वो तभी आएगा जब हम बिगेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेंगे, ठीक है। तो हम अब यहां से देखें कि क्या आएगा, यहां से क्या आएगा, यहां और यहां देखेंगे इन दोनों कॉलम्स में, तो क्या कॉमन है? ए, क्योंकि ए बी है, यहाँ ए बी बार है, तो ए कॉमन है दोनों बॉक्स में। और इधर से जब देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए 9, 11, 15, 13 के लिए जो हम देख रहे हैं अभी, ओके। सो जब हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो यहाँ से हमें कॉमन क्या दिख रहा है? यहाँ सी बार डी है और यहाँ सी डी है, तो इसका मतलब है कि डी कॉमन है, तो ए डी। ओके, नेक्स्ट फॉर दिस ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन, इस ग्रीन कलर वाले कॉम्बिनेशन के लिए हम देखें मीन्स 5, 13, 15, 7 में, तो वर्टिकली यहाँ से जब हम देखेंगे तो हमें यहाँ कॉमन क्या मिलेगा? यहाँ से कॉमन हमें मिलेगा, यहाँ ए बार बी है और यहाँ ए बी है, सो बी इज कॉमन। सो यहाँ से बी निकल कर आया, और जब हम हॉरिजॉन्टली यहाँ से देखेंगे तो हम क्या देखेंगे? फिर से हमारे पास क्या मिलेगा? यहाँ से हॉरिजॉन्टली कॉमन क्या है? सी बार डी है, और सी डी है मतलब डी, वी विल हैव अ डी, ओके।
नाउ द कॉम्बिनेशन विच इज ब्लू इन कलर, इस कॉम्बिनेशन के लिए जब हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ वर्टिकली देखें तो वर्टिकली इन चारों बॉक्सेस में 12, 13, 15, 14 में ए बी सभी में कॉमन है, सो ए बी तो होगा। अब हॉरिजॉन्टली देखें तो हॉरिजॉन्टली इन चारों कॉलम्स में देखेंगे तो हमें कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो वर्टिकल कॉम्बिनेशन बना हुआ है ब्लू कलर में, अगर उसे हम देखें तो वी विल हैव नो एनी कॉमन इन ऑल द बॉक्सेस, नथिंग इज कॉमन इन ऑल द बॉक्सेस, ठीक है। तो इसलिए वर्टिकल हॉरिजॉन्टली कुछ नहीं आएगा, सो ए बी विल बी द प्रॉपर सॉल्यूशन। नाउ इसके लिए देखें जो दो मिनटर्म्स का कॉम्बिनेशन है, यहाँ के लिए क्या आएगा, तो यहाँ से वर्टिकली हमें देखना होगा, वर्टिकली देखना होगा तो क्या मिलेगा हमें, ए बार बी बार यहाँ से मिलेगा, क्योंकि इन चारों बॉक्सेस में 0, 1, 2, 3 इन सभी में ए बार बी बार कॉमन है, सो ए बार बी बार एंड हॉरिजॉन्टली हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, तो यहाँ से क्या आएगा, सी, यहाँ से आएगा सी, क्योंकि सी डी है और सी डी बार है, सो सी आएगा। सो द रिजल्टेंट विल बी एफ, सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या हो जाएगा उसका, ए बार बी बार सी प्लस बी डी प्लस ए डी, ए बी ओनली, अच्छा यहाँ पर एक और टर्म है ए डी भी है, प्लस ए डी, ओके। सो वट एवर सॉल्यूशन यू हैव some students have given, so I think only Anjali and Yogesh have given the solution, so it's good that you have attempted। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आप लोगों में से, अरे ये क्या हो रहा है भाई, ओके, सो यहाँ पर जो अंजलि ने लिखा है उसका अप्रोक्सीमेटली, अच्छा ए बार बी बार सी, ए बी ए डी ए बार बी बार सी, ओके, सो अंजलि का तो राइट है यानी कि पूरा, और ए बार बी बार सी इनका भी आया है, योगेश का भी, बट देयर आर, क्योंकि योगेश ने यहाँ पर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बहुत ज्यादा ले लिए हैं, है ना योगेश, सो यू हैव फाउंड दिस। सो हमें जाना, हमें किस तरफ जाना है कि मैक्सिमम जो लार्जेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो लार्जेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमें देखना होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का एक पार्ट और है, इस क्वेश्चन का एक पार्ट और ये है कि यू हैव टू रियलाइज दिस एक्सप्रेशन, दिस सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन यूजिंग NAND गेट्स, ओके। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है realize the simplified function using NAND gates, ओके। सो हमारे पास जो f फंक्शन मिला है वो क्या मिला है, a बार b बार c प्लस ए बी प्लस ए डी प्लस बी डी, हमें ये मिला है, ठीक है। और हमें क्या करना है, इसे NAND गेट्स से रियलाइज करना है। तो अगर NAND गेट से रियलाइज करना है, सो वी शुड हैव द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ NAND, ओके। NAND का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, NAND के लिए अगर दो वेरिएबल्स a और b है तो y NAND इज इक्वल टू क्या होगा, a एंड b का नॉट, ओके। सो दिस इज NAND। सो हमें ये जो एक्सप्रेशन है उसे हमें NAND के फॉर्म में लाना पड़ेगा। सो अगर हम f का अगर कॉम्प्लीमेंट ले लें, देन व्हाट वी विल हैव a बार b बार c प्लस ए बी प्लस ए डी प्लस बी डी, ओके। तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। नाउ यहाँ पर हम क्या करें, डिमॉर्गन्स रूल अप्लाई करें। अगर डिमॉर्गन्स रूल अप्लाई करेंगे तो व्हाट वी विल हैव, a बार b बार c डॉट ए बी डॉट ए डी डॉट बी डी, ओके। तो अभी हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, एंड के फॉर्म में आ गया। अभी इस एंड वाले एक्सप्रेशन को हमें क्या करना है, NAND में कन्वर्ट करना है। तो f जो है इसमें बार था, इसमें दोबारा बार कर दिया जाए, दोबारा कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a बार b बार c ए बी ए डी बार बी डी बार का कॉम्प्लीमेंट। तो हमें जो अभी एक्सप्रेशन मिला है वो क्या है, ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ NAND, ओके।
तो NAND तो मिल गया। अब हमें देखना क्या है कि यहाँ पर जो भी वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से वेरिएबल्स कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में है। सो आई हैव टोल्ड यू ऑल टू गो थ्रू द realization of different gates using universal gates. So NOT gate को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो NAND से तो हम कैसे करेंगे रिप्रेजेंट? A है, A बार चाहिए। ओके, नाउ यहाँ पर हमारे पास A बार और B बार दो ही वेरिएबल्स हैं जो कि कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है, ठीक है। एंड अगर कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है सो वी नीड अ नॉट गेट। सो हाउ अ नॉट गेट कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ NAND गेट? Can anybody tell me? तो NAND गेट में क्या होता है? दिस इज NAND गेट, और इस NAND गेट में अगर हम सेम इनपुट दें देन वी विल हैव व्हाट? वी हैव A हियर, मतलब A यहाँ आएगा और A यहाँ आएगा। तो NAND का आउटपुट क्या होता है? A डॉट A का बार। सो A डॉट A मीन्स व्हाट? A, सो वी विल गेट A बार। सो यानी कि नॉट गेट हमें कैसे मिलेगा? एक जो इनपुट लेंगे उसे अगर दो इनपुट, उसी इनपुट का अगर दो इनपुट हम NAND में दें देन वी विल गेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट वेरिएबल, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट इनपुट। ओके, सो नाउ वी हैव टू रियलाइज दिस फंक्शन यूजिंग NAND गेट्स। सो व्हाट वी विल डू, we will take different lines. Okay, we will take different lines. One for, okay, we have 4 variables, so 1 2 3 4 वेरिएबल्स के लिए 4 लाइन मैं ले रहा हूं। ये 4 लाइन एक्चुअली वायर लाइन शो कर रहा है, एंड दिस 4 लाइन्स आर नथिंग बट A, B, C and D. Okay, now what we need for first term, इस फर्स्ट टर्म के लिए हमें क्या इनपुट चाहिए? A बार, B बार और C. So we need A बार। तो A बार हमें लेना है तो क्या करें? यहां से एक लाइन खींचेंगे, हमें A बार चाहिए। A बार चाहिए तो हमें क्या लगाना होगा? एक नॉट गेट, और हमें नॉट गेट, सिंपल नॉट गेट इस्तेमाल नहीं करना है, NAND का नॉट गेट इस्तेमाल करना है। सो वी विल हैव अ NAND गेट हियर। ओके, A बार हो गया, यहां से A बार आया। नेक्स्ट वी विल हैव अ B बार। सो yes, so in this way we have got a NAND here, one more NAND। और इन दोनों का क्या है? इन दोनों के बीच में AND है। सो ओके, इन दोनों के बीच में AND नहीं, NAND ही है। सो व्हाट वी कैन डू हियर, अभी हमारे पास A बार आया, यहाँ B बार आया, और क्या है? एक टर्म और C है। सो वी विल टेक C ऑल्सो, यहाँ से C को भी ले ले, और इन तीनों का क्या कर दे? AND कर दे, सॉरी NAND करें। इन तीनों का NAND है, सो वी विल हैव अ NAND हियर। ओके, नेक्स्ट अभी क्या है? AB बार। AB बार है तो हम क्या करें? A से एक टर्मिनल लेंगे, B से एक टर्मिनल लेंगे, और दोनों का NAND करेंगे, ठीक। इन द सेम वे द थर्ड टर्म AD, सो वी विल टेक A। हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर A है तो हम यहीं से ले लेते हैं, हम यहाँ से भी ले सकते हैं बट यहाँ से भी ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है। वी विल हैव A, और क्या है? D है, सो D यहाँ पर है, ठीक, AD आ गया। नेक्स्ट BD, सो BD है नेक्स्ट टर्म। सो वेयर वी हैव B, वी हैव B हियर एंड वी हैव D हियर, और इन दोनों का क्या? इन दोनों का NAND। अब ये जो 4 टर्म्स हैं, टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3 और टर्म नंबर 4, ये चारों टर्म्स आपस में NAND हैं, AND का not। okay, so we will have one, we need one more NAND gate। so okay, so is there any problem? So the question is, you have firstly the expression was given, and you have to simplify this expression using K-map, and realize that simplified expression using the NAND gates.
So in this way, we have represented the simplified expression using NAND gates. Okay. Is there any doubt? Is there any doubt? Is there any doubt? No, sir. Okay. So, okay, one more thing I have to show you. Okay, let us move to the next question. Because now we have to practice different type of questions of K-map. Okay, so I am giving one more question of F. Okay, I am just giving you the K-map, and you have to tell me the simplified expression. Okay, so this is the K-map. You have to tell me the answer. The K-map is given here. You have to tell me the answer. So I'm putting here the box numbers. Okay, can I tell me the combinations? What should be the combinations? Just after observing the K-map, what are the possible combinations? 0, 1, 3, 2. 0, 1, 3, 2, 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7, 8, 9, 14. 8, 9, 11, 10. 11, 10. सारे वंश इंक्लूड हो गए? 12, 8. 12, 8, 14, 10. 14, 10. I think सारे वंश इंक्लूड हो गए ना? Anybody else? किसी का और कोई सजेशन? आकाश? Yes, sir. So can you tell me the combination, whether these combinations are right? Yes, sir. Okay. Anybody else? सर जो 0, 1, 3, 2 ये सब सही है। Okay. इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन? ऐसा कर सकते हैं सर, जो ये कॉम्बिनेशन बन गया इसमें मैच नहीं ना करना चाहिए। मैच नहीं करना चाहिए मतलब? सर 1 मिनट सर, ऐसा बना सकते हैं यहाँ से ऐसे और इसका भी एक ऐसा ले सकते हैं। हाँ, आप जो बता रहे हो तो हाँ, ये जो आप दो का कॉम्बिनेशन 5, 7 बता रहे हो ना, तो हमने क्या कहा ऑलरेडी कि हम हमेशा चाहेंगे कि बिगेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन बने। तो ऑलरेडी 1, 0, 1, 2, 3 तो कॉम्बिनेशन में आ गया है, लेकिन अब 5, 7 अगर हमारे पास है तो दिस 5, 7 कैन बी इंक्लूडेड विथ 1, 3 सो दैट वी कैन गेट अ क्वाड। ओके,
इज इट ओके? जैसा कि आप Yes, बता रहे sir. हो कि 5 7 का आप कॉम्बिनेशन लोगे, तो हम क्या चाहते हैं कि बिगेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेंगे, तो वी विल टेक दिस होल कॉम्बिनेशन, ओके, सो दैट इट विल मेक अ क्वाड. सर तो ऑलरेडी इंक्लूड है तो वो हाँ नहीं ऑलरेडी, देते सर। यस यस, दैट इज व्हाट द केस. वो ऑलरेडी इंक्लूडेड हो, लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा वन हमारे पास बच रहा है, सो उस एक्स्ट्रा वन को इंक्लूड हम कर सकते हैं बाकी के दूसरे वंस के साथ जो कि ऑलरेडी इंक्लूडेड हो चुका है. ठीक है, यस सर। तो ये ध्यान रखना है. अच्छा ठीक है, तो ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं. यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको और ध्यान में रखना है कि जो कॉर्नर वाले या एज वाले जो कॉम्बिनेशन है वो हम बना सकते हैं. एज वाले कॉम्बिनेशन मतलब ये इधर और ये इधर, एज वाले कॉम्बिनेशंस भी हम ले सकते हैं. मतलब अगर इसे फोल्ड किया जाए, अगर हम इसे रोल करें, तो ये 8 9 11 10 और 0 1 3 2 आपस में आके सट जाएंगे. इजंट इट? जैसे हमारे पास यस सर। हाँ, हमारे पास एक पेज है ना. इस पेज को अगर हम इधर से भी फोल्ड करें और इधर से भी फोल्ड करें, मतलब दोनों को, अगर आप दोनों एजेस को, इस वाले एज को और इस वाले एज को अगर आपस में मिलाएंगे, तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा. ठीक है, जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं. तो यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन 0 1 3 2 और 8 9 11 10 जो अलग अलग कॉम्बिनेशन लिए हैं, ये दोनों मिलकर ऑक्टेट बना देंगे. ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को बताने के लिए मैंने क्वेश्चन लिया दैट जो एजेस पर के या कॉर्नर्स पर के जो वन होते हैं उनको मिलाकर हम क्वाड या एक ऑक्टल बना सकते हैं. ठीक है, सो इसलिए ये दोनों अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, ये दोनों मिलकर एक सेपरेट कॉम्बिनेशन बनाएंगे. ठीक है, सो यहाँ से जब हम देखें तो ठीक है, तो एक चीज तो हो गया 1 3 5 7, ये राइट है, ये सही है. अब यहाँ पर हमारे पास क्या आपने कहा 12 और 14, तो क्या 12 और 14 को हम ऐसा ले सकते हैं, एज वाले, ऐसा और ऐसा. अगर इस फोल्ड को, इसी पेज को अगर हम फोल्ड करें नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये 10 11 और 14, सॉरी 12 8 और 14 10 आपस में जाकर मिल जाएंगे. तो इस तरीके से एक क्वाड का फॉर्मेशन होगा. ठीक है ना. सो इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन बना, तो ये 12 8 और 14 10 ये एक कॉम्बिनेशन बनेगा. ठीक, तो इस तरीके से ये सारे वंस इंक्लूड हो गए. नाउ यू कैन टेल मी दी आंसर दैट इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए आंसर क्या आएगा. वर्टिकली अगर देखें यहाँ से और यहाँ से, तो क्या कॉमन है दोनों बॉक्स में, दोनों कॉलम्स में क्या कॉमन है? बी बार. 0 कॉमन है, और ये 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बी को, बी बार को. अब अगर हॉरिजॉन्टली देखें इन चारों में, तो क्या कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है. कुछ कॉमन नहीं है मतलब जो इसका सॉल्यूशन आएगा, मतलब इन 8 का जो ऑक्टेट बना, इस ऑक्टेट का जो सिंप्लीफाइड कॉमन पार्ट जो निकलेगा वो सिर्फ बी ही निकलेगा, बी बार ही निकलेगा. ठीक है, तो एक पार्ट मिल गया बी बार. तो आप देख पा रहे हो कि अब अगर हमारे पास यहाँ पर क्वाड है, तो इस क्वाड का क्या होगा, सिंप्लीफाइड वर्जन. यहाँ से कॉमन क्या है इन दोनों बॉक्सेस, इन दोनों कॉलम्स में? 0 1 0 0 और 0 1. सो वी हैव अ 0 हियर. 0 मींस ए बार. एंड हॉरिजॉन्टली यहाँ देखना होगा, तो हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो यहाँ में क्या मिलेगा, कॉमन क्या है? डी. डी. ओके, डी इज हियर. ओके, नाउ फॉर दिस कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन में यहाँ से देखें वर्टिकली क्या कॉमन है, यहाँ से और यहाँ से देखें वर्टिकली क्या कॉमन है दोनों में? ए. यस, वेरी गुड. और हॉरिजॉन्टली हमें यहाँ देखना होगा और यहाँ देखना होगा, क्योंकि दोनों जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया है वो यहाँ से है. तो क्या कॉमन आएगा यहाँ से? डी. डी और डी बार. डी बार. डी बार. इट शुड बी डी बार. ओके, सो सारे कॉम्बिनेशंस हो गए. तो हमारे पास कॉम्बिनेशन कितना मिला? ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन, ये सेकंड कॉम्बिनेशन, ये थर्ड कॉम्बिनेशन और ये फोर्थ कॉम्बिनेशन. तो 4 तो हमें मिले नहीं, एक कौन सा छूट गया, सॉरी, ये 4 नहीं. तो ऑलरेडी वी हैव हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस? 3 कॉम्बिनेशंस आर देयर. फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो हमने ऑक्टेट वाला बनाया,
जो कि ये पार्ट है, ये पूरा पार्ट ऑक्टेट वाला है. सो वी हैव 3 कॉम्बिनेशंस. सो द आंसर विल बी A bar D AD plus B bar. ठीक है. So you will join again because time is getting over.